صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ الکریم وقولہ الحق واصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم. ہم تسلیت عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں، بالخصوص منجی بشر حضرت حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں بسلسلہ شہادت جناب مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان سے. پروردگار عالم سورہ بقرہ آیت نمبر 155 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ امتحان لیتا ہے کن بندوں کا، وہ اور کیسے امتحان لیتا ہے. اور ہم یقیناً تمہیں تھوڑے خوف، بھوک، مال کی کمی، تمہارے جان کے ذریعے سے، تمہارے اولاد کے ذریعے سے امتحان لیں گے. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا کہ جو امتحان میں کامیاب ہوگا وہ بشر الصابرین، اور ہم یہ صابرین کو بشارت دیتے ہیں. ناظرین محترم، اگر آپ غور کریں اور ملاحظہ کریں تو خداوند عالم ہر بندے کا امتحان نہیں لیتا، اس کا امتحان لیتا ہے جس کو پروردگار عالم صابرین میں سے جو اس کو پاتا ہے اور ان کو بشارت دیتا ہے. جناب مسلم ابن عقیل، یہ جناب عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ہیں، اور مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ابن عبد المطلب امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیل بھائی ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلم چچا زاد بھائی ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے 28 رجب سن 60 ہجری کو جب مدینہ چھوڑا تو مدینے سے آ کر مکے میں قیام کیا. مکے میں 4 مہینے تقریباً قیام کیا. وہاں پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف جگہوں سے خط آئے، بالخصوص کوفے سے بہت زیادہ خط آئے، اور امام نے اپنے مشیر کو بصرہ کی طرف اور کوفے کی جانب بھی روانہ کیا. جس کو کوفے کی جانب جس سفیر کو روانہ کیا اس کا نام تھا مسلم ابن عقیل. ماہ مبارک میں مسلم ابن عقیل کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کی جانب روانہ کیا. پہلے جناب مسلم کوفے کے لیے نکلے، کوفے سے پہلے مدینے تشریف لے گئے. مدینے میں جناب مسلم نے قیام کیا اس وقت تک جب تک ماہ مبارک تھا. ماہ مبارک کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی ماہ رمضان کے ختم ہونے جانے کے بعد، جناب مسلم نے اپنے 2 فرزندوں کو لیا، ایک ابراہیم کو، ایک محمد کو، اور 2 ایسے لوگوں کو لیا جو کوفے کے راستے کو جانتے تھے، اور ان کے ساتھ چل دیے. بالآخر راستے میں کیا حادثہ پیش آیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں راستے میں، بعض اختلاف روایت یہ ہے کہ دونوں سفیر جو لوگ راہ جانتے تھے، راستہ جانتے تھے، بالآخر کوفے پہنچتے پہنچتے جناب مسلم کے ساتھ ان کا چھوٹ گیا. اب مسلم کوفے میں جب آئے ہیں تو سب سے پہلے مختار ثقفی کے گھر میں قیام کیا. اس کے بعد کچھ دن تک وہاں قیام رہا، اور اس کے بعد جب جناب مختار کو کسی کام کے تحت، کسی ضرورت کے تحت کوفے سے باہر جانا ہوا تو جناب مختار جب جانے لگے تو جناب مسلم بھی کہنے لگے جب صاحب خانہ نہیں تو مہمان کہاں رہے گا. وہاں سے جناب مسلم نکل کر جناب حانی ابن عروہ کے گھر میں آئے اور قیام کیا. پھر جناب مسلم مسجد تشریف لے کے گئے اور انہوں نے اپنا بتایا کہ میں سفیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے بھیجا گیا ہوں. تو لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کیا، اور تقریباً باختلاف روایت 18,000 لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا اور حمایت کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ خبر کسی نے یزید کو خط کے ذریعے سے بھیجا کہ نعمان ابن بشیر جو کوفے کا گورنر ہے وہ اس وقت کمزور ہے اور وہ کچھ کر نہیں رہا ہے. مسلم بہترین طریقے سے اپنا پیر جما چکے ہیں اور لوگ مسلم کے ساتھ ہو چکے ہیں. یہ خبر جب یزید کو ملی تو یزید نے ایک لیٹر لکھا گورنر بصرہ کے گورنر کے پاس. بصرہ کا گورنر اس وقت تھا عبید اللہ ابن زیاد، کہ تم اپنا بصرے میں کسی نائب کو بنا کر یہاں سے کوفے کی گورنری بھی تم کو ہم سونپتے ہیں، اور جا کر تم کوفے کی گورنری سنبھال لو. ادھر سے چلا، کون چلا؟ عبید اللہ ابن زیاد. جب عبید اللہ ابن زیاد چلنے لگا تو اپنے ساتھ شریک ابن آور کو بھی لیا. شریک ابن آور جو محب اہل بیت تھے،
साथ हुए रास्ते में, खुदा बेहतर जानता है, वल्लाहु आलम कि खुद जनाब शरीक ने ऐसा किया या ये कि जनाब शरीक के साथ कोई हादसा पेश आया और उनका पैर खराब हो गया, टूट गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर मेरे साथ ये हो जाएगा तो शायद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा न पहुंच पाए और इमाम पहुंच जाए और बेहतरीन काम बन जाए। लेकिन उसने शरीक इब्न आवर को छोड़ा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने और चल दिया। जब उसने देखा शरीक इब्न आवर ने कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद नहीं मान रहा है, किसी कीमत पर वो निकल चुका है, तो ये तेज रफ्तार सवारी से किसी तरीके से पहुंचे कहां पे, कूफे में हानी इब्न उर्वा के घर में। जब हानी इब्न उर्वा के घर में पहुंचे तो देखा कि हानी के घर में जनाब मुस्लिम भी हैं। सारे माजरा को जनाब मुस्लिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बयान किया। ये पहुंचा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। जब कूफे के दरवाजे के नजदीक पहुंचा तो सोचा दाखिल कैसे हो, और इसी असना में जनाब मुस्लिम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खत लिख दिया था कि कूफे के हालात साजगार हैं, आप तशरीफ लाएं, बेहतरीन आप आ सकते हैं कूफा, कोई मुश्किल और परेशानी की बात नहीं है। तो लोगों ने सोचा कि अब तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे, और ये खबर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के कान में किसी ने डाल दी। उसने क्या किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे अमामा लगाते थे वैसे उसने अमामा लगाया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जैसे रिदा पहनते थे, अबा कबा सारा तरीके से करने के बाद उसने अपने चेहरे पर को ढांक लिया, और ढांकने के बाद लोगों ने क्या सोचा कि अब तो ये तो इमाम हुसैन है, और ये लोगों में हुल्ला हंगामा भी हो गया कि इमाम हुसैन तशरीफ ला चुके हैं, और लोगों ने ये सोचा कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। इन्होंने रास्ता को खोल दिया और ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून अंदर दाखिल हो गया। दाखिल होकर दारुल अमारा के करीब पहुंचा, और पहुंचने के बाद देखता क्या है कि नुमान इब्न बशीर दारुल अमारा की छत पर खड़ा हुआ है। इसने कहा दरवाजा खोलो, तो नुमान इब्न बशीर को सोचा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, तो उसने कहा कि मैं फर्जंद रसूल ऐसे दरवाजा इतनी आसानी से नहीं खोलूंगा, कूफे का दारुल अमारा इतनी आसानी से आपके कब्जे में नहीं दूंगा। लेकिन इसने जैसे ही चेहरे से अपने ढाटे को हटाया, नकाब को हटाया, फौरन कहा मैं हूं उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, दरवाजा खोलो। जैसे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को देखा और दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गया। अब ये सेफ हो गया, अब ये मुतमईन हो गया। अब इसने जो है पता करवाना शुरू किया कि मुस्लिम कहां है, मुस्लिम इब्न अकील कहां है। लेकिन लोगों को खबर, लेकिन लोग पता न कर सके कि मुस्लिम कहां है, क्योंकि मुस्लिम ग्रुप पे खामोश थे। इसको मालूम चला कि तुम्हारा एक दोस्त शरीक इब्न आवर हानी के यहाँ कयाम है। इसने पैगाम पहुंचवाया कि मैं शरीक इब्न आवर से मिलने के लिए हानी के घर आ रहा हूं। ये पहुंचा हानी के घर, और जैसे ही हानी के घर पहुंचने वाला था कि जनाब शरीक इब्न आवर ने मुस्लिम से ये कहा कि देखिए, जब मैं देखूंगा कि हालात साजगार हैं, आप पर्दे के पीछे छुपे रहिएगा, बाहर निकलिएगा और इसको उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कत्ल कर दीजिएगा, मामला खत्म हो जाएगा। ये दाखिल हुआ, जनाब मुस्लिम पर्दे के पीछे चले गए, आया और आने के बाद मुलाकात किया। जब देखा इन्होंने कि हालात साजगार है, कत्ल हो सकता है, आराम से मौका बेहतरीन है, तो इन्होंने कहा कि पानी पानी पानी, क्योंकि ये साइन बता रखा था कि जैसे ही मैं पानी मांगूंगा समझ लेना कि मौका गनीमत है। लेकिन जनाब मुस्लिम न निकले। इसके गुलाम ने इसको पकड़ा और लेकर चला गया और कहने लगा कोई मामला जरूर है। यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ऐसा हुआ। उसके बाद निकला और निकलने के बाद पहुंचने के बाद ये खबर जो है एक आम हो गई। अब लोगों को खरीदो फरोख्त किया जाने लगा, जिसको किसी को माल के जरिए से, किसी को डर के जरिए से, किसी भी तरीके से। और 3000 दिरहम इसने अपने गुलाम माकिल को दिया कि तुम मुस्लिम का पता लगाओ। ये आया मस्जिद में आने के बाद इबादत करना शुरू कर दिया माकिल। ये देखता क्या है, उस वक्त शियों की जो अलामत थी, आज हम खो बैठे। शियों की अलामत ये थी कि ज्यादा देर तक मस्जिद में इबादत में बसर करना, दुआएं पढ़ना, नमाजें पढ़ना और दीगर इबादत ताकीबात पढ़ना। आज हमारे दरमियान से ये अलामत खत्म हो चुकी है। हम मस्जिद देर में जाते हैं और पहले निकलने की कोशिश करते हैं। इसी असना में ये देखता रहा, रीड करता रहा, कौन है जो शिया है जो पता बता सकता है। इसने जो है देखा कि मुस्लिम इब्न औसजा जो करबला के शहीद हैं, ये भी देर तक नमाजें पढ़ते हैं। ये गया, कहने लगा कि तुम्हें मुस्लिम को खबर है कि मुस्लिम कहाँ है? मुस्लिम इब्न अकील, मैं जो है थोड़ा सा रकम लेके आया हूँ, पुम्स की है, दे दूंगा। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। उन्होंने आनाकानी करके निकाल दिया, लेकिन ये माना नहीं। फिर इबादत करता रहा, इबादत कर सोचा कि वाकई ये कोई शिया है, क्योंकि जितनी देर तक हम इबादत करते उससे कहीं ज्यादा देर तक ये इबादत करता है। इसी के धोखे के चक्कर में आ गए, फरेब के चक्कर में आने के बाद इन्होंने मुस्लिम का
पता बता दिया। हानि इब्ने उर्वा के घर लेकर गए और देख लिया, इसने हानि को और सारे मैटर को, मसले को पढ़ लिया। ये गया मोहम्मद इब्ने अशस के पास और अपने आका जिसको कहता था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का मुशीर इस टाइम मोहम्मद इब्ने अशअस था। सारी खबर, सारी रिपोर्ट कूफे की देता था। इसने बताया कि ऐसी ऐसी बात है। इसने मोहम्मद इब्ने अशअस से कहा कि तुम, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशअस से कहा कि तुम जो है हानि को बुलाओ। हानि को बुला भेजा। हानि के कबीले के लोगों ने हानि को जाने से मना कर दिया। हानि सरदार कबीला थे, अपने कबीले के सरदार थे, पावरफुल बेहतरीन कबीला था जनाब हानि का। जो लेकिन हुआ क्या कि इसने जो है बहकाया कि नहीं, तुम्हारा जो है अमीर तो कितना अक्लमंद है, कितना पावरफुल है, ताकतवर है, लिहाजा कोशिश जाने दीजिए इसको, इससे हम कुछ मामलात हल करेंगे। देख रहे हो कूफे के हालात कैसे हैं, क्या है, बदतर से बदतर होते चले जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि ठीक है। ये दाखिल हो गया, लेकर चले गए। जब हानि को अंदर लेकर गए, पूछा तुम जानते हो मुस्लिम कहाँ है? अब हानि ने कहा नहीं, मुझे मुस्लिम का पता नहीं मालूम। फिर पूछा जानते हो मुस्लिम कहाँ है? कहा मुस्लिम का मुझे पता नहीं मालूम। अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे जवानों, उसके बाद ये माकिल गुलाम निकला। का इसको पहचानते हो? इतना मारा है जनाब हानि को कि उनका दांत पैर सब कुछ तोड़कर और कत्ल करके दारुल अमारा के बाहर फेंक दिया गया। जब जैसे ही बाहर फेंके, जो लोग जनाब मुस्लिम के साथ थे सारे मुखालिफ हो गए। इसीलिए आपने सुना होगा कि जनाब मुस्लिम के हाथ पर इतने लोगों ने बैयत किया था और नमाज इशा में मुस्लिम तन्हा हो गए। क्यों? लोग डर और खौफ की वजह से कि अरे जब कबीले का सरदार न बच सका तो आम आदमी की बात क्या है। ये हो गया मामला खत्म, चुप्पे खामोश हो गए और जनाब मुस्लिम तन्हा रह गए। अब जनाब मुस्लिम जो है बाहर निकल आए। बाहर निकलने के बाद पूरे रास्ते में कहीं इधर कहीं उधर मुस्लिम थक हार कर बैठे एक घर के पास। एक घर के पास बैठे एक ज़ईफा खातून ने देखा, दरवाजा को खोला, देखा एक शख्स बैठा हुआ है। कहने लगी देखो इस पुरआशोब माहौल में अपने घर चले जाओ, तुम्हें इस कूफे के हालात की खबर नहीं है। मुस्लिम ने आवाज दिया जिसका कोई नहीं वो कहाँ जाए। अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे नाज़रीन मोहतरम, कभी गौर करो, कभी ना आशना गलियों में आप फंस जाएं और आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए, आपके अंदर हालात क्या पैदा होते हैं। चाहे कि मुस्लिम और दो बच्चे बिछड़ चुके हैं, मुस्लिम के बच्चे बिछड़ गए, अजीब अंदाज है। कहा वो कहाँ जाए? कहा कौन हो? कहा मैं सफीर हुसैन मुस्लिम इब्ने अकील। तो ने घर का दरवाजा खोला, मुस्लिम को दाखिल किया अपने घर में और जनाब मुस्लिम ने कहा मुझे एक हुजरे में खाली करा दो, मुसल्ला लाओ, खाना पानी दिला, पानी पिया। कहा मैं अपने खुदा से राजो नियाज करना चाहता हूँ। मुस्लिम इबादत में गुजार रहे हैं। इसी असना में उसका बेटा उसके घर में आया। घर में आने के बाद कहता है माँ वो हुजरे में कौन है, वो हुजरा बंद क्यों है? माँ ने कहा कि बेटा उसमें बहुत कीमती शय है और बहुत मोहतरम शख्सियत है उसमें। कहा कौन? कहा मुस्लिम इब्ने अकील। उसने जैसे हुजरे के दरवाजे को देखा और मुस्लिम इब्ने अकील को देखा, दरवाजे को बंद किया, फौरन भागकर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के दरबार में यानी दारुल अमारा में पहुंचा और मोहम्मद इब्ने अशअस से कहता है कि मैं खुशी की खबर सुनाऊं। कहा क्या? कहा पहले इनाम मिलेगा, खुशी की खबर दो। कहा मुस्लिम इब्ने अकील हमारे घर में है, आप लश्कर लेकर चलिए। इस मलऊन ने, मोहम्मद इब्ने अशअस ने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को बताया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने 200 आदमी के साथ इस मोहम्मद इब्ने अशअस के साथ भेजा, किसको? मुस्लिम को पकड़ने के लिए। यह खबर जैसे ही मुस्लिम ने देखा, अपना जंगी लिबास जेब तन किया और बाहर निकल आए। निकलने के बाद सबब अगर पूछे कोई कि मुस्लिम क्यों निकले, तो यही कहेंगे मैं नहीं चाहता कि कोई नामहरम किसी नामहरम के घर में घुस जाए। ए मुस्लिम, इतना ख्याल, जरा करबला तो आइए, जरा करबला में आकर रोज़े आशूर और शाम गरीबा के मंजर को तो देखिए कि क्या आलम है। आले रसूल है, नामहरमों का हुजूम है और यही कूफा होगा, सन 61 हिजरी का कूफा होगा, लेकिन आलम कुछ और होगा। नामहरमों होंगी, नामहरमों का हुजूम होगा, आपकी बहन बेटियां होगी। अजीजों, जनाब मुस्लिम है कि लड़ते जा रहे हैं, जंग करते जा रहे हैं, हमले पे हमला करते जा रहे हैं। मोहम्मद इब्ने अशअस ने कहा कि फिर 200 आदमी को भेजो। ये बौखला गया उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, कहने लगा एक आदमी को पकड़ने के लिए इतने लोगों की जरूरत? कहने लगा कोई तुमने कोई आम
आम इंसान समझ रखा है ये हैदर कर्रार का के घर का है, ये हैदर कर्रार का भाई भतीजा है, कोई मामूली शख्सियत का आमिल नहीं, ये अकील का बेटा है, इसके अंदर अबू तालिब का खून दौड़ रहा है। लेकिन वहां पर भी गिरफ्तार न हुए, धोखे से एक गड्ढा खोदा, गड्ढा खोदने के बाद जनाब मुस्लिम को उस गड्ढे में गिराया, फिर भी लोग जा नहीं रहे हैं। जब आमान नामे की बात हुई कि तुम्हें मुस्लिम आमान है, तलवार को रोक दो, जैसे मुस्लिम ने आमान नामे और तलवार के रोकने की बात सुनी, खामोश हो गए, गिरफ्तार किया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद के दरबार में लेकर गए। किसी ने कहा अमीर को सलाम नहीं करोगे? जनाब मुस्लिम ने कहा मेरा अमीर तो सिर्फ और सिर्फ हुसैन इब्न अली है, उसके अलावा कोई नहीं है। क्या तुम्हारी आखिरी कोई ख्वाहिश है? कहा मेरी बस आखिरी 3 ख्वाहिशें हैं, मेरी 3 वसीयत है। पहली वसीयत ये है कि मैंने जब हालात को अच्छा देखा तो हुस्ने भाई हुसैन इब्न अली को खत लिखा था कि आप कूफा चले आइए, कोई ये खत लिख कर हुसैन को बता दे, पैगाम पहुंचवा दे कि मौला कूफे मत आइएगा, कूफा रहने के लायक नहीं, कूफा आने के लायक नहीं। कहा दूसरा ये है कि मुझे प्यास की शिद्दत बहुत है, पानी मिल जाए। मुस्लिम को पानी दिया गया 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन मुस्लिम पानी न पी सके क्योंकि होंठ मुस्लिम के जख्मी थे, जितनी मर्तबा होंठ में लगाते थे उतनी मर्तबा खून गिरता था और पानी का रंग बदल जाता था, पानी मुजाफ हो जाता था। मैं कहूंगा मुस्लिम आप तो हुसैन के भाई हैं, आप तो करबला का आगाज कर रहे हैं। जब आपका प्यासा आका प्यासा शहीद होगा तो आप कैसे पानी पी सकते हैं? कहा तीसरी ख्वाहिश, कहा तीसरी वसीयत मेरी ये है कि मेरे लाशे को दफना दिया जाए। लेकिन अजीजों इन 3 वसीयत पर मुस्लिम के अमल न किया गया। मुस्लिम के सरोतन में जुदाई कर दी गई, जिसमें अतहर को मुस्लिम के दारुल अमारा की छत से फेंका गया, पैरों में रस्सियां बांधकर कूफे में फिराया गया। कूफे की गलियों में फिराने के बाद इसी मुस्लिम के लाशे को दारुल अमारा की छत पर टांग दिया गया। मुस्लिम तन्हा रह गए, कूफियों ने मुस्लिम के साथ बेवफाई। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम।